السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج اس ناول کبھی تو پاس میرے آؤ اس کی میں لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کروں گی۔ تو یہ ناول آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو میرے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ میرا نیکسٹ جو میں ناول اپلوڈ کروں گی وہ بھی اچھا ہوگا تو اس کو بھی آپ لوگ ضرور ریڈ کریے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اس کی جانب۔ آپ آج کی رات میرے وجود کو تو حاصل کر لیں گے لیکن میرے دل تک رسائی ہرگز بھی حاصل نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ آنکھوں سے اشک رواتے جبکہ لہجہ اس کا تلخیل یہ ہوتا ہے کہ شاہ زمان نے جھٹکے سے وفا کو سیدھے ہاتھ سے خود پر سے ہٹایا، خود سیدھا ہو کر بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وفا نہ سنبھل کے بیٹھنے کے بعد ایک نظر اپنے آپ پہ ڈالی، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ شاہ زمان نے تقریباً تمام کی تمام ڈوریاں کھول دی تھی شرٹ کی، جس کے باعث وفا کے سراپے کے دل کے نشے و فریز کافی حد تک پوری آب و تاب سے جھلک رہی تھی۔ وفا نے گھبرا کر جلدی سے خود پہ تھوڑا سا فاصلے پہ رکھا ہوا دوپٹہ ڈھانپا تھا اچھی طرح، اشک اب بھی آنکھوں سے مستقل رواتے اپنے بے وقوف بن جانے پہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پٹے اور اس نے سما جائے یا سامنے موجود شخص کا سائڈ ٹیبل پہ رکھی گلدان سے سر پھاڑ دے۔ آخر تمہارے اس طرح رونے کا مطلب کیا ہے؟ پاور کروانا چاہتی ہو تم مجھے کہ میں جلات ہوں، تمہارے ساتھ ناجائز کر رہا ہوں، یا پھر میں نے تم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اور یہی جتانا چاہتی ہو؟ منا مجھے بولو۔ ظلم؟ ہاں ستم نہیں ڈھائے تم نے مجھ پہ، مگر مجھ پہ فریب ضرور دیا ہے۔ بہت بڑا جال بنایا ہے تم نے میرے لیے، میری سانس سے نہ جانے کن ناپاک عزائم کو پورا کرنا چاہتے ہو تم اپنے۔ اور رہی بات یہ کہ تم کون ہو، کیا ہو، یا پھر تمہاری پہچان کوئی ایک چیز بھی تو وہ ایک لفظ سے بات چبا کر کہتی۔ مزید بہت کچھ سخت سنانا چاہتی تھی مگر اس کی طرف بڑھتے کر لمبے چوڑے مضبوط ہاتھ کے بھرمی لیے تیور دے کر یکایک چپ کر گئی۔ میں اور میری پہچان اتنی اسٹرانگ ضرور ہے کہ تمہیں میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ جانے سے بہت عظیم فائدے پہنچنے ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ سل رہا تھا جسے خود بھی اندر ہی سلگ رہا تھا۔ درمیان میں فیصلہ مٹاتے اب اس کے سر پہ پہنچا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی پہچان پہ، تم جیسے شخص میرے لیے میری جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں کچا کہ میں تمہیں جوتے کی نوک پہ رکھوں۔ ہاتھ کی پوچھ سے بے دردی سے آنسو کو رخسار سے صاف کیا گیا، لہجے میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہ تھا۔ تم جیسی لڑکیاں اپنی ہستی بستی زندگی کو گھر سے داؤ پہ لگانے کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جسم فروشی کیا ہوتی ہے، جانتی ہو یہ گور دھندا کیسے کہتے ہیں؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا، مگر نہیں، تم تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود پہ کنٹرول کر ہو بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اس کے شانوں کو ہاتھ تھام کے ہر درجہ تلخی آمیز لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ آنکھوں میں آنکھ کے شرارے پھوٹے پڑ رہے تھے غصے کی شدت سے۔ جانتی ہو یہ گورا دھندا کسے کہتے ہیں؟ غصے میں قابو پانے کی کوشش کے باوجود شاہ زمان کی آواز میں تلخی رچی ہوئی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، بس میرا دل آپ سے اس لیے خفا ہے کیونکہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے بیوقوف بنایا۔ اپنے شانوں پہ بے بس ہوتی شاہ زمان کی سخت انگلیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے آنکھوں میں تکلیف سے آنسو بھر آئے تھے جبکہ لہجہ ہر درجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ میں نے تمہیں بیوقوف نہیں بنایا وفا ڈیئر، میں بیوقوف تم خود بنی ہو میری بلبل، تمہارا اور اوور کانفیڈنس تمہیں لے ڈوبا۔ شاہ زمان نے اس کے نازک شانے سے اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت کچھ کم کی دی۔ وفا کی آنکھوں میں ناشتے درد کو دیکھ کر شاہ زمان کا کچھ پل قبل والا غصہ لمحوں میں دھواں دھار ہوا تھا۔ کیا تھا اگر آپ مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے مشن میں شامل کر لیتے تو؟ وہ خفی سے بولی، لہجے میں گوشویا شکوہ آیا تھا جبکہ نظریں بغیر کسی جھجھلاہٹ کے شاہ زمان کی نظروں میں اپنے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی اس ادا پہ اش کر اٹھا، یار نہیں کر سکتا تھا نا ایسا، کیونکہ میں تمہارے لیے دوسرا مشن اپنے ساتھ بہت پہلے طے کر چکا تھا۔ کب اور کیسے کہ نکیوں سے دیکھا تھا اس دن جب میں نے تم سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ شاہ زمان نے تیزی سے لہجے کو سنجیدہ بنانے کی کوشش کی، کیا واقعی آپ نے میرے لیے بھی مشن سوچ رکھا تھا؟ وہ خوشی سے چیخ اٹھی، بالکل تمہاری قسم۔ وہ خود سے درجہ قریب کرتا وفا کی کمر کے گرد حصار تنگ کر چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی وفا کو سب کچھ سچ بتانے سے اس وقت سے تھا۔ وجہ پپو کا بھیس تھا۔ پیر کے کارندوں نے پپو کے اوپر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی لیکن شاہ زمان کی مجبوری تھی کہ اس کو یہ اطمینان دلانا تھا ان سب لوگوں کے کہ وہ پیر شاہ سائی کا وفادار ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی وفا کو بتا دیتا اس کی نادانی میں ہی کوئی ایسی بات جو ان لوگوں کی نظر میں آ جاتی تو شاید معصوم لڑکیاں اس خطرناک کھیل میں ملوث ہوتی۔ وفا کی جذباتی نیچر کا تو وہ بخوبی اندازہ اپنے چہرے پر پہلی ملاقات میں پڑنے والے تھپڑ سے لگا چکا تھا۔ اچھا تو پہلے مجھے بتائیے نا کہ وہ مشن کیا ہے، کیا کرنا پڑے گا اس مشن میں مجھے؟ اب یہی آنکھیں ہوئی تھی، آنکھوں میں اشتیاق لیے وہ شخص مسلمان صرف جوش میں صبا کر رہی تھی۔ آخر کروں گا تو سب کچھ میں بس میں تمہیں میرے ساتھ دینا ہوگا۔ شاہ زمان شرارت سے کہتا مسکرا دیا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وفا نے اب کی بار شاہ زمان کے اس کو گرفت میں لینے کے باوجود کسی بھی قسم کی مذمت نہیں کی تھی، جیسے اپنے دل سے اجازت دے دی اس کو اپنا آپ معطل کرنے کی۔
यार फिर वो मिशन की बात को लेकर खासी जज्बाती हो रही थी, इसलिए कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी। शाहज़मान को शोभा सा हुआ, सोच लो एक दफ़ा अच्छी तरह से कि मैं बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है तुम करने से पहले ही हार मान जाओ। वो मखमूल लहजे में कहते वफ़ा की शर्ट की आखिरी बंदी डोरी भी हो चुका था, बगैर उसको समझने के मौके दिए अपने बाजू में भर के बेड तक लाया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पोपट साहब कि मैं खतरों की खिलाड़ी हूँ। मुँह में का याद दहानी करवाई गई। अच्छा बताओ ना, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो? वो बेकरार से शराबी लहजे में दरियाफ़्त कर रहा था। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ ना, पहले थी ना, मगर मेरा रिएक्शन आपको देखकर फितरी था, ये आपको मानना ही पड़ेगा। मेरे साथ ये सब शौक का बाइस था। मैं दिन रात पप्पू को सोचती थी जिसने मुझे पीर के शंकची से निकाला था, मगर दिल को बहुत तकलीफ़ हुई थी जब जाबर के वादा लेने के बाद आपकी तरफ से खामोशी रही। मेरी तरफ आपकी लापरवाही मुझे खांसी से दुःख से दो चार कर रही थी। आपको पता है पप्पू वो शख्स था जिसने मेरी जान बचाई, मेरी इज़्ज़त का रखवाला बना रहा 2 रातों और 3 दिन। यही नहीं मेरे लिए पप्पू जाबिर से किया वादा था, फिर वादे की मैं पाबंद हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कब मैं पप्पू जैसी टपोरी पर्सनैलिटी के मालिक शख्स से दिल लगा बैठी। क्या तुम इस वक़्त भी नहीं पहचानी थी कि मैं हूँ? जब जाबिर ने मरते वक़्त मेरा नाम पुकारा था। वफ़ा की खामोशी से पूरी बात सुन लेने के बाद इसको ताज्जुब हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस वक़्त जाबिर को मौत के बिल्कुल करीब जाता देखकर शायद अपने हवासों में ना रही थी। बस याद था तो जाबिर और उसकी आँखों में झाँकता मान। वो पूरी ईमानदारी से आज अपने दिल हाल बयान कर रही थी। मगर मैंने कई दफ़ा न्यूज़ पे भी आया हो, तुम तब भी नहीं पहचानी? वो उसकी जी उम्र से छेड़छाड़ करने में मसरूफ़ नरमी से कह रहा था। बस मुझे ये पता था कि शाहज़मान जाबिर ने मिलकर इस जलील झूठे पीर को सज़ा दिलवाई है। बहुत बड़ा सबक सिखाया मैं आपकी टीम ने इनके पूरे ग्रुप को। मैं बस इस मुखालते में रही कि पप्पू भी आपकी इस मुश्किल तरीन मशीन का एक वफ़ादार व खुफिया बंदा था। अपनी बात कहकर वो खामोशी हुई और मानो जैसे बहुत बड़ी सिल उतार दी है इसने अपने दिल से। आज की रात एक बात तो यार माननी पड़ेगी, खासी अक्लमंद साबित हुई हो। हम तो हाँ, हम तो यार। वो हँसी मुश्किल दबा के बोला, वो तो मैं हूँ अज़ल से। वो बड़े मज़े से बोली बगैर इसी जुमले पे गौर किए। चलो अब मिशन बताएं जो मैंने और आपने मुकम्मल करना है एक साथ। वफ़ा की टांगें एक दफ़ा फिर इससे मिशन पर टूटी। शाह का चाह अपना सर पीट ले, मेरे बताने से क्या तुम समझ जाओगी या किसी और तरीके से बताऊँ? अच्छा चलो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने अब मुझसे दोस्ती कर ली है ना? मेरी है मेरी बुलबुल। शाहज़मान इसकी नाक को हल्का-सा दबाते हुए प्यार भरे लहजे में कहता, गर्दन पे झुक चुका था। अब पप्पू के लब लहजे में वापस आ चुका था, एकदम पक्की-पक्की। अब नो मेंशन। लेकिन इस वक़्त शाहज़मान के मज़ीद इशारतें करने से इसकी गर्दन पे गुदगुदी हुई थी। वो धब से एकदम से फ़ासले कायम करती शाहज़मान से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ, मैंने तुम्हें मारा तो नहीं ना? उसके कूद के गुज़र जाने पे कुछ अचंभा-सा हुआ। गुदगुदी जवाब हाज़िर हुआ है। क्या कहा तुमने अभी? अरे गुदगुदी हो रही है मुझे। वफ़ा अपनी गर्दन के ऊपर दोनों हाथ जमाए अब भी गुदगुदी महसूस करके खिलखिल कर रही थी। है च बेचारे शाह की हैरत से आँखें फटी की फटी रह गईं। चलो कोई बात नहीं, पहली दफ़ा है ना तो तुम खिलाती रहो, ऐसी पी मैं क्या गुदगुदाता हूँ। मखूल लहजे में कहा। एक दफ़ा फिर वफ़ा को खुद से करीब करने के लिए इसका हाथ बढ़ा गया। नहीं में मुझे गुदगुदी होती है। वो ज़ोर-शोर से की करते हुए से आज पिछले तमाम हिसाब-किताब बराबर करने पे तुली हुई थी। या तुम तो मिशन में कामयाबी की बातें करती बड़ी-बड़ी और इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया। मैंने मिशन से थोड़ी सरेंडर किया, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं ना इससे मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। वफ़ा के चेहरे की मासूमियत काबिल-ए-दीद थी। वो अपनी गर्दन पे हाथ जमाए अभी भी खिलखिला रही थी। शाह का जानदार कहकमा फ़िज़ा में बुलंद हुआ। अरे ये अक्लमंद लड़की, यही तो वो मेरा मिशन है जिसके लिए तुमने शोर से हामी भरी है कुछ देर पहले। वो मैंने ख़याली से बोला, मुश्किल है पप्पू दी पोपट, ये तो मुआज़त में आपका साथ नहीं दे सकती इस अहम मिशन में। वो फ़रार होने को थी, जी एकदम शाह ने इसकी फ़रार के तमाम रास्ते बंद कर दिए। इस कदर मज़बूती से इसके दोनों हाथों को जकड़ा था कि वो हैंड्स अप के अंदाज़ में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसकी गिरफ़्त में आ चुकी थी। तो फिर मेरी पप्पी कटोनी पप्पी, तुम ज़रा अपने होम को होशो-हवास में आ जाओ, क्योंकि मैं अब अपना मुकम्मल मिशन पूरा करके ही दम लूँगा। मेरा मिशन शुरू हो रहा है अब। लबों पे दिल मुस्कुर सजाए मोहब्बत से कहते एक दफ़ा फिर इसकी ठोड़ी पे लबों को ठहरा गया। ये फ्रॉड है यार, तुम ये मुँह बंद करो। ऐसा ना हो बाहर अम्मा मेरी ये समझे कि बाहर कार्टून चल रहे हैं अपनी शादी की रात। वो इसकी ज़ातों पे ज़ोर से टुट्टे मार के हँसी जाती जब शान से तलमला के इसको वार्न किया था। हाँ, तो आपके काम ही ऐसे निराले कि मेरी हँसी ही नहीं रुक रही है। उफ़! तुम इतनी मासूम हो, तुम ये हो ही नहीं सकता। और अगर वाक़ई ऐसा है तो ठीक है, अब मुझे तुम्हारी हँसी को अपने तरीके से ब्रेक लगाना पड़ेगा। शाहज़मान ने वफ़ा के लब पे लब रख कर जैसे इसकी हँसी को ब्रेक लगाए। खूबसूरत रात और छमछम बरसात दोनों के हसीन मिलन में खुद भी गुदगुदू महसूस करके झूम रही थी, खिलखिला रही थी।
उम्मीद के इंतकाल के कुछ दिन बाद वो तीनों पाकिस्तान आ गए थे। हवेली की फ़िज़ा में सन्नाटा और अफ़सरदगी रची हुई थी, जो कि महमल और कामिल को बड़ी शिद्दत से महसूस हुई। गमगीन और जानलेवा सन्नाटे को जाना कि कोयल जैसी आवाज़ ने एक दफ़ा फिर से रौनक नहीं बदलता था। ताई ताया समेत दादी का भी रवैया महमल के साथ ख़ासा बेहतर और काफ़ी हद तक खुशगवार हो चला था। सफ़र के बाद जब वो अपनी थकान उतार के जब दोनों बेडरूम से निकले, तो इस वक़्त शाम की चाय के लिए सब लोग लॉन में मौजूद थे। इस वक़्त ताया और ताई ने शर्मिंदा और निढाल से अंदाज़ में तमाम तर अफ़राद के सामने महमल और कामल से अपने किए की तलाफ़ी की थी। ताई बार-बार महमल से माफ़ी माँगते हुए रो रही थी और एक ही बात को दोहरा रही थी कि मुझे माफ़ कर दो महमल, तुम्हारी माफ़ी मुझे पुरसुकून कर सकती है। मैं और मेरा दिल किसी तरह भी जाबिर के बाद पुरसुकून नहीं हो रहे, सुकून नहीं मिल पा रहा। हर पल दिल बेचैन और वहम सा वसवसा शिकार रहने लगा है मेरा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे महमल, तुम मुझे माफ़ कर दो खुदारा। वो महमल के आगे दोनों हाथ जोड़े अश्क बहा थी। इनके हर जुमले में सदाकत की खुशबू बसी थी और दिल से पशेमान थी अपनी तमाम तर पिछली बातों पे। मैंने आपको माफ़ किया, मेरे खुदा ने आपको माफ़ किया, क्योंकि मैंने अपना मामला इसी लम्हे अपने अल्लाह पे छोड़ा और था, और मैं जानती हूँ हर चीज़ पर कादिर है। वो भीगे लहजे में बहुत धीमी आवाज़ में बोली, यही जानती थी कि इसका रब कितना मेहरबान है, तो भला वो फिर कौन होती है दिल में नफ़रत पालने वाली। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा जाबिर बहुत परेशान है, मुझे पुकारता है, मुझे इसकी दूरी नहीं सोने देती, ना ही जीने दे रही है। तुम दुआ करो कि मेरी रूह जल्दी कामिल से मिल जाए महमल। महमल ने बहुत तेज़ी से उनके जुड़े हाथों को पकड़ा और अपने आँखों से लगा कर खुद भी रोने लगी। वहाँ मौजूद सभी अफराद इस मंज़र आबिदा हो गए, और वो तो थी मोहब्बत से गुंदी, नरम दिल और एहसास की मालिक, सब कुछ भुलाए खुशियाँ बाँटने के लिए उठ खड़ी हुई। लेकिन अभी एक और मुश्किल तरीन मरहला इस सब के लिए बाकी था, और वो था कामिल से अपनी कोताहियों की एक्सक्यूज़ करने का। कामिल जबकि जाबिर और मुमीत के इंतकाल के बावजूद वैसे ही था। महमल से इसकी मोहब्बत और वफ़ादारियों में रद्दी भर कभी भी नहीं आई थी, मगर महमल हर वक़्त अपनी मनफ़ी सोच पशेमान होती रहती। अपनी ये सोच इसने खामख़ा कामिल के किरदार पे शक किया था, इसको मारे दे रही थी। एक दफ़ा अपनी सोच के लिए कामिल के सामने तंबीह भी बाँधी माफ़ी के लिए, मगर फिर वही हुआ, हर दफ़ा हिम्मत हार जाती। खुद में इस बात को लेकर कामिल से हमकलाम होने में कतरा रही थी। ऐसे में जाना वो वाहिद हस्ती थी जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए ही सही लेकिन पुरसुकून हो जाया करती थी। वो खुद से शर्मसार थी, गुनहगार समझ बैठी थी खुद को कामिल का। महमल को इसकी पाकीज़ी और मुक़द्दस मोहब्बत बेचैन और बेकरार रखती। हर पल का एक अजब इसराब भरी कैफियत में गुजरने लगा था इसका। बकरा ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे थे, मगर कामिल इस कदर मसरूफ़ था कि इसको सर खुजाने तक की फुर्सत ना मिल रही थी कामों से। एक वजह तो बकरा ईद की तरफ निकलती थी इसकी ज़िम्मेदारियों की थी, दूसरी तरफ ईद के पहले दिन नमाज़ फजर के बाद इसको अपने इलाके का सरदार की कुर्सी संभालनी थी। बाकायदा पूरे इलाके की मौजूदगी में रस्म होनी थी। वो अपने इलाके का आगा सरदार बनने वाला था, और इस दिन इसको लेकर कई ख़ास नवा खूब अदा के दिल में थे। कई नई और दौर और जदीद के मुताबिक रवायत इसने कायम करनी थी, तो कई पुरानी बोसीदा और जद्दी पुश्ती चलती आ रही फरज़ुदा रवायत का अब चैप्टर क्लोज़ करने का वक़्त आ चुका था। रात रात भर वो बेशक काफ़ी देर से घर आता था। मैं इसका इंतज़ार करती, आखिर काट थक के सो जाया करती। अब तो जाना का भी एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवा दिया था। कामिल और मेमन ने मिलकर वो जो फजर से उठा करती थी, फिर पूरा दिन छोटे-बड़े काम करने के बाद रात को ही सोने को लेटती। इसने बगैर किसी के कहे खुद ब खुद अपने नातो-शानों से हवेली की काफ़ी हद तक ज़िम्मेदारी सँभाल ली थी, जो कि पहले मुन्ना सास के वाहिद ऊपर हुआ करती थी। मुन्ना हज की अदायगी करने के लिए खुदा और उसके रसूल के घर गई हुई थी अपने भाई के साथ। चाँद रात वाले दिन महमल जल्दी सारे काम निपटा रही थी। शावर लेकर फ्रेश होने के बाद कॉटन का सुनहरी सूट निकाल के पहना। अभी वो ज्वेलरी पहनने के बाद हल्का-फुल्का मेकअप कर रही थी, जब जाना की मनमोहनी सी आवाज़ कानों में गूंजी, मम्मी क्या आज आप कहीं जा रही हैं अपनी जाना को छोड़ के? जाना जो कि बड़ी देर से इसको तैयारी में मगन देख रही थी, अपनी गोल-गोल आँखों में हैरत लिए पूछने लगी। रात को 9 बजे का वक़्त हो रहा था और जाना स्कूल जाने के बाद जल्दी सो जाया करती थी। वो इस रात 8 बजे खाना खिलाने के बाद सुला दिया करती थी। आज भी ऐसे ही हुआ था, मगर शायद जाना ने अपने स्कूल की रूटीन की आदी होने की वजह से स्कूल की तैयारी के लिए गई छुट्टियों के बावजूद अपने रूटीन पे रही थी। और दूसरा ये भी मुमकिन था कि महमल की तैयारियों लाइट जलने की वजह से इसकी आँख खुल गई थी और नींद खराब होने से वो उठ गई थी। नहीं मम्मी, कहाँ जा सकती जाना को छोड़ के, भला आप तो मेरी ज़िंदगी की उम्मीद, मेरी रूह की मकीन हो, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं मेरी चंदा। वो जाना को यूँ कहने पे एकदम से साँस होके पलटी, उसको अपनी गोद में उठा के गालों को चूम डाला। वो अपनी तमाम तर तैयारियाँ एक तरफ कर चुकी थी अपनी लाडली बेटी के लिए। तो फिर तुम इतना तैयार होके क्यों क्यों हो रही हो दुल्हन की तरह? जाना के सवाल कई दफ़ा महमल को बोलती बंद कर दिया करते थे। वो गड़बड़ा कर आ जाया करती थी इसके मासूना मा मासूमाना सवाल पे, क्योंकि अब की मम्मी को आज आपके पापा का ख़्याल आ गया, आखिरकार जाना है बच्चे। महमल की बजाय कमरे में दाखिल होते कामिल ने जवाब देते हुए पहले जाना को उसकी गोद से लिया था, फिर महमल के गाल पे प्यार से पूछा तो पीछे हुआ कुछ फासले पर, बाबा जानी ये फ़ाउल है, आप हमेशा पहले मम्मी को किस करते हैं। जाना की नाराज़गी निराली थी। वो दोनों छप कर मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। चलें अब आप दीजिए अपनी लाडली को जो जवाब जो अब तक मैं खाना लाती हूँ गरम करके,
वो दोनों बाप बेटी की मोहब्बत भरी रंगूरी से नवाजती कामिल का जवाब सुनने बगैर कमरे से निकलती चली गई। जानती थी कि वो इसको इस वक्त किचन में नहीं जाने देगा। कामिल को इसके हर वक़्त कामों में घिरे रहने से खाँसी होती थी। वो रात के वक़्त इसको कभी भी जब घर में होता तो किचन तक दूर की बात, एक काम करने नहीं देता। कुछ देर बाद जब खाना गरम करके ले आई, तीनों ने मिलकर एक साथ काफ़ी दिन बाद इंतहा पुरसुकून और खुशगवार वो हमने खाना खाया था। मैं सारे बर्तन समेट कर जैसे ही रूम में वापस आई, थोड़ा-सा टिटकी कामिल जाना के कान में कुछ खुसर-फुसर कर रहा था। इसे कमरे में आता देखा दोनों बाप-बेटी की मुस्कुराहट पल भर में गायब थी, लेकिन बावजूद कोशिश की जाना की मुस्कुराहट में शरारत थी, जो इस बात की निशानदेही करते कि कोई बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट मिशन कामिल ने इसको सौंपा था। जबकि कामिल भी अब बहुत दिलफिर अंदाज में मुस्कुरा रहा था। साइड टेबल पर रखा शॉपिंग बैग जल्दी से कामिल ने अपने पीछे छिपाना चाहा। जाने की शरारतें तो जैसे उरूज पाती हुई तेजी से बाप की पुष्प पे तनकी। मैम, हम तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे, बाबा तुम्हारे और मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं लाए, पक्का वादा। ज़ैना ने मासूमी से कहते हुए अपनी गर्दन गर्दन नफ़ी में लाई और कामिल को देखा, जो थोड़ा खसिया गया था। ज़ैना के उधार राज फर्श कर देने पर, क्या है मुझे भी दिखाओ इस शॉपिंग बैग में प्लीज़ ज़ैना। मैमी को तजस्सुस हुआ, दोनों को मैंने ख़याली हँसी हँसी पर वो आगे बढ़कर अब कामिल से वो शॉपर छीनने की कोशिश करती है, जबकि ज़ैना और कामिल की पूरी कोशिश थी कि वो शॉपिंग बैग की पहुँच से दूर रह सके। ओके, मैं दिखाता हूँ। तीनों थक-हार के अब बाल्टी-बाल्टी मार के कारपेट पे बैठ गई थी। मैम, तुम क्या सोचती हो कि मैं कितना मसरूफ़ रहा हूँ? क्या तुमको भूल ही गया? इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए ईद का जोड़ा और ज्वेलरी वगैरह लेकर आया हूँ। ज़ैना का गिफ्ट पैक वो पहले ही इसको दे चुका था, जो ज़ैना बड़े मज़े से खोल के देखने में मसरूफ़ थी। और बाबा जानी साथ में फूल कलियों वाले हार भी तो लाए हैं आपके लिए, है ना बाबा? हाँ, हाँ मेरी गुड़िया, वो भी है। कामिल ने सोचा था वो रात में ज़ैना के सजाने के बाद सुजाने के बाद रोमांटिक अंदाज में इसको पेश करेगा, फूल बोल देगा, मगर फिलहाल जाना सारे रोमांस की ऐसी कम तैसी करने पे अपनी कमर कस कर चुकी थी और फूल गजरे इसको पहनाने लगा। मुझसे किसी किस्म का गिला तो नहीं तुम दोनों माँ बेटी को? आप, महमल की आवाज़ पर कहती एकदम ज़मीन ने कटघरे में लाकर खड़ा किया था इसको पल में, कहे कि ये वही कामिल है जिसको तुम किरदार की कमज़ोरी के ताने दिया करती थी माज़ी में। बहुत मुश्किल से अल्फ़ाज़ अदा हुए थे इससे। हाँ जी हाँ, मैं हूँ तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मासूम शौहर। मैं माफ़ी माँगने के काबिल तो नहीं समझती खुद को, मगर फिर भी आप बहुत आला ज़र्फ़ हैं, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैंने आपकी ज़ात पे कीचड़ उछाले, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो यकायक फूट-फूट के रोई थी, जबकि जाना अपनी ईद पे बना जोड़ा और चूड़ियाँ वगैरह देखने में अपनी दादी के कमरे में भाग गई थी। अरे! अरे! ये दिन मौसम बरसात क्यों गुड़िया, वो इसके आँसू से मुखला गया। बस आप मुझे माफ़ कर दें। ओहो भई, मैं गलती पर था, जज़्बाती हो गया था इस दिन। तुम्हें किरदार की पाकीज़ा ज़रूरत है, तुम्हारे हर इल्ज़ाम जायज़ थे इस वक़्त। वो आज भी इसको मुअत्तर कर गया था, सब कुछ बड़ी सफ़ाई से अपने ऊपर ले गया था। महमल इसके चौड़े सीने से आ लग गई थी, जैसे इसकी आगोश में पनाह ढूँढ रही हो। खामोश हो जा मैमी तुम, नहीं तो मैं वाक़ई तुमसे ख़फ़ा हो जाऊँगा। पूरी ईद पर तुम जो है ना मेरी नाराज़गी के साथ गुज़ारा कर लेना। बोलो मंज़ूर है क्या? कामिल का लहज़ा कुछ ऐसा ख़फ़ा-सा हुआ कि मैंने झट से अपने आँसू पोंछ डाले। उसकी नाराज़गी अफ़ोर्ड कर नहीं सकती थी भला। महमल, ये हकीकत है कि मेरी इस रात की जज़्बातियत से मैं बहुत नादिम रहा। कई दिन मगर तुमसे दस्तबर्द नहीं हो सकता था, मेरे लिए नहीं मुमकिन न था और ना आज है। वो गंभीर लहज़े में कहता, इसकी कलाई थाम कर इसको करीब करता अपना सर इसकी गोद में रखे महमल की नशीली आँखों में देखते हुए बोला, और मेरे लिए आपका साथ और आपकी मोहब्बत ही सब कुछ है। बस मुझे आपका साथ चाहिए हमेशा और मुझे तुम। वो मखमूल लहज़े में कहता है, जो ज़ारदुस्त पे आमादा हुआ। महमी बाबा महमी बाबा को क्यों पिटाई कर रही हो? ये एकदम जाना जिन की तरह हाज़िर हुई। वो सिटरा के सीधी हो बैठी, जबकि कामिल अभी ठीक बना इसकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। मेरी ये बच्ची दूसरे बहन-भाई नहीं आने देगी अपना, वो दाँत पीस कर बोल रहा था, जबकि महमल ने इसका सर आराम से कारपेट पर रखा, उठ खड़ी हुई, मगर कामिल के हाथ में इसकी कलाई आ चुकी थी। सुनो, मैं पागल हूँ और मेरा पागल तुम हो महमी। चाँद रात मुबारक हो आगा। वो सरगोशी में कह रहा था, लेकिन जाना भागती हुई आई और इसके सीने पे बैठ गई। महमल ने ये मौका गनीमत जाना और चाँद रात मुबारक कहकर इसको ठेंगा दिखाकर भाग गई।